स्टूडेंट्स, कल के लेक्चर में बेटे हमने टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन स्टार्ट किए थे। उसमें हमने दो ही टाइप डिस्कस किए थे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अगर पंजाबी च बेटे गल करिए तो दो रिएक्शंस कितने सीगे कल, एक सीगे संयोजन क्रिया और दूसरी अपघटन क्रिया। फर्दर अपघटन ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸਮਾਂ ਵੀ डिस्कस ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, तीन किस्मां ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀ ਊਰਜਾ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ठीक है, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੇਟੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਕਰਾਂਗੇ। फर्दर इज बेटा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन पंजाबी च बेटे इसको लिखते हैं विस्थापन क्रिया। What is displacement reaction? A reaction in which जिसमें क्या होता है, more reactive element that can displace, किसको displace कर सकता है बेटे, that can displace a less reactive element. A reaction in which more reactive element can displace the less reactive element from its solution, aqueous solution. More reactive element will displace the less reactive element from its aqueous solution. Means ਅਜਿਹੀ ਕਿਰਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਤੱਤ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਵਾਲੇ ਤੱਤ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਘੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਵੇਗਾ, ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਪਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਇਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਇਸ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਪਨ ਕਿਰਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਿਰਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਧਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਧ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਧਾਤ ਦੁਆਰਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਿਸਥਾਪਨ ਕਿਰਿਆ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਕਾਪਰ ਸਲਫੇਟ ਦਾ ਘੋਲ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕਿੱਲ ਪਾ ਦਿੰਦੇ। ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਮੇਖਾਂ ਪਾਉਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਕਾਪਰ ਸਲਫੇਟ ਦਾ ਘੋਲ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਰੰਗ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਰੰਗ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਕਾਪਰ ਸਲਫੇਟ ਦੇ ਘੋਲ ਦਾ ਰੰਗ ਪਹਿਲੇ ਨੀਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਲੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, और बाद ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲਾਈਟ ਗ੍ਰੀਨ ਹਲਕੇ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦਾ। ਕਾਪਰ ਸਲਫੇਟ when react with the iron, or in other words you can say when some iron nails can be put into copper sulfate solution which is blue in color, that is copper is displaced. You may note copper is displaced from its solution, and in place of the copper iron comes. That's why iron sulfate is formed, parasulfate, which is light green in color. That's why color changes from blue to light green. ठीक है, तो बेटे ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਧਾਤ ਕਾਪਰ ਕਿਸਨੇ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਆਇਰਨ ਨੇ। It means that the iron is more reactive as compared to the copper. That's why copper is displaced from its aqueous solution. So एक इसकी एग्जांपल है विस्थापन क्रिया दी उदाहरण। कुछ और उदाहरण भी ले सकते हैं ਅਸੀਂ ਕਾਪਰ ਸਲਫੇਟ ਦੀ ਨਾਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੀ। ਕਾਪਰ ਸਲਫੇਟ ਦੀ ਜ਼ਿੰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। In this reaction color become lighter and copper is displaced. It means that the zinc is also more reactive as compared to the copper. That's why ਕੀ ਕੀਤਾ ਜ਼ਿੰਕ ਨੇ, ਕਾਪਰ ਸਲਫੇਟ ਦੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਪਰ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦਾ और खुद ਉਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਟ ਹੋ ਗਿਆ। ठीक है, तो ये होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बेटे। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट मींस डिस्प्लेस मींस चेंज कर देना उसका प्लेस, in which the more reactive substance that can displace the less reactive substance from its aqueous solution। एक और एग्जांपल ले सकते बेटे हम इसकी, that is
ferric oxide, when it react with the aluminium, when it react with the aluminium, what is noted, it means aluminium is more reactive. क्या बन जाएगा, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड, और आयरन डिस्प्लेस हो जाएगी। ये जो रिएक्शन है इसमें बहुत साथ में क्या प्रोड्यूस होती है, हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और हीट एनर्जी प्रोड्यूस होने की वजह से ये जो आयरन है वो किस फॉर्म में आता है, मोल्टन फॉर्म में आता है, लिक्विड फॉर्म में आता है। इस रिएक्शन को स्पेसिफिकली सिर्फ मैं इस रिएक्शन की बात कर रहा हूँ। किसकी रिएक्शन, आयरन के ऑक्साइड की एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन, जिसमें एल्यूमिनियम का क्या बन जाता है, ऑक्साइड, और आयरन किस फॉर्म में आता है, लिक्विड की फॉर्म में आ जाता है। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज एल्यूमिनोथर्मिक रिएक्शन, एल्यूमिनोथर्मिक रिएक्शन, और इन शॉर्ट आल्सो कॉल्ड एज थर्माइट वेल्डिंग। ये रिएक्शन कहाँ पे यूज होता है, ये रिएक्शन यूज होता है बेटे ब्रोकन रेलवे लाइंस को जोड़ने के लिए। जब रेलवे लाइंस के बीच में गैप आ जाता है, अगर दूसरी तरह से वेल्डिंग करेंगे तो सॉलिड पार्ट बन जाएगा, रेलवे लाइन जो है उसकी सरफेस क्या हो जाएगी, रफ हो जाएगी। तो सरफेस प्लेन रहे इसलिए उसमें लिक्विड आयरन डाल देते हैं, और जब बाद में वो ठंडी हो जाएगी तो सरफेस प्लेन रहेगी। तो दिस प्रोसेस एल्यूमिनोथर्मिक रिएक्शन दैट इज यूज्ड इन द थर्माइट वेल्डिंग। थर्माइट वेल्डिंग किसके लिए होती है, ब्रोकन रेलवे लाइंस को जोड़ने के लिए। तो ਜਦੋਂ ਲੋਹੇ ਦਾ ਆਕਸਾਈਡ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦਾ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਕਸਾਈਡ, ਔਰ ਲੋਹਾ ਮੁਕਤ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਊਰਜਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਪ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਪ ਊਰਜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲੋਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ द्रव रूप च आ जाता, लिक्विड रूप च आ जाता, तो इस करके इस रिएक्शन ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਲੂਮੀਨੋਥਰਮਿਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਆਖਦੇ ਹਾਂ, और इसਨੂੰ थर्माइट वेल्डिंग च ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ। थर्माइट वेल्डिंग टुटियां हुई रेलवे लाइन्स ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਿੱਚ उपयोग होगी। ठीक है जी, ये सारी किसकी एग्जांपल है बेटे, डिस्प्लेसमेंट और विस्थापन क्रिया की। लेस रिएक्टिव एलिमेंट इज डिस्प्लेस्ड बाय मोर रिएक्टिव एलिमेंट from the aqueous solution of the less reactive element। ठीक है, इस तो बाद बेटे असी अगला रिएक्शंस जड़ा पढ़ांगे वो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट तो बाद डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हम डबल है तो पंजाबी च फिर उन्होंने क्या कहते हैं, विस्थापन। हाँ विद्यार्थियों, नेक्स्ट ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦੋਹਰਾ ਵਿਸਥਾਪਨ। What is double displacement reaction? It is a type of chemical reaction। कौन से टाइप की केमिकल रिएक्शन है बेटा? It is a type of chemical reaction in which जिसमें क्या होता है, दो सॉल्यूशन, in which two solutions, क्या होता है, टू सॉल्यूशंस को, और टू कंपाउंड्स दैट रिएक्ट होते हैं। रिएक्ट होके क्या करते हैं, रिएक्ट इन द आयनिक फॉर्म, आयनिक फॉर्म में रिएक्ट करते हैं टू फॉर्म, क्या बनाते हैं, टू न्यू प्रोडक्ट्स। दो सॉल्यूशंस रिएक्ट करते हैं जो एक्वस सॉल्यूशन की फॉर्म में होते हैं, और दोनों मिला के क्या बनाते हैं, नया प्रोडक्ट बनाते हैं, दो नए प्रोडक्ट बनाते हैं। सिंपली दिस रिएक्शन टेक प्लेस बाय द एक्सचेंज ऑफ द कैटायंस एंड एनायंस विद ईच अदर। फॉर एग्जांपल, lead nitrate when react with the potassium iodide, both solutions are aqueous solution, means they are dissolved in water, both are colorless। when they get mixed, lead iodide, मैंने क्या बोला, सिंपली आयंस एक्सचेंज होंगे, पोटेशियम आयोडाइड में पोटेशियम पॉजिटिव, आयोडीन नेगेटिव, लेड नाइट्रेट में लेड पॉजिटिव, नाइट्रेट नेगेटिव।
आयन एक्सचेंज होंगे, लेड के साथ आयोडीन आ गया, लेड आयोडाइड, और पोटेशियम के साथ क्या आ जाएगा, दूसरे वाले का नेगेटिव, दैट बिकम्स पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, तो आप चेक कर सकते हो सिंपली क्या हुआ है, एक्सचेंज ऑफ आयन हुआ है। इसमें जो लेड आयोडाइड है इसके येलो कलर के प्रेसिपिटेट्स बनते हैं। ठीक है, येलो कलर के प्रेसिपिटेट्स बनते हैं। इन द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन प्रेसिपिटेट्स आर फॉर्म्ड। Since the precipitates are formed in the double displacement reaction, that's why these reactions are also called as a precipitation reaction. Because precipitates are formed in this reaction, that's why it is also called as a precipitation reaction. What are precipitates? These are the insoluble, solid insoluble material which settles at the bottom of the test tube, that is called as the precipitate. तो दोहरा विस्थापन क्रिया च की ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਇਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਲਾ ਬਦਲੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਨ ਦੂਸਰੇ ਦੇ 네ਗੇਟਿਵ ਆਇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੈਡ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਦਾ ਜਿਸਲੇ ਜਲੀ ਘੋਲ ਲਿਆ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਆਇਓਡਾਈਡ ਦੇ ਜਲੀ ਘੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਵਾਤਾ, ਤਾਂ ਆਇਓਡੀਨ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਲੈਡ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬਣ ਗਿਆ ਲੈਡ ਆਇਓਡਾਈਡ, ਔਰ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣ ਗਿਆ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ। तो लेड आयोडाइड के बेटे पीले कलर के अवखेप बनते हैं, अवखेप जिन्होंने प्रेसिपिटेट्स भी कहते हैं, तो इस करके इस क्रिया को अवखेपन क्रिया कहते हैं, इस क्रिया को अवखेपन क्रिया कहते हैं। आओ असी कुछ होर उदाहरण लईए इसलिए, ऐसे तरह ही एक उदाहरण होर ले सकते हैं, बेरियम क्लोराइड का घोल, बेरियम क्लोराइड के घोल नूं एक्वस घोल जली घोल नूं सोडियम सल्फेट दे एक्वस घोल नाल जदों मिक्स कर दिंदे हां, थोड़ा मैं इधर लिख दिंदा, तां वाइट कलर दे प्रेसिपिटेट्स बनणगे, चिट्टे रंग दे अवखेप बनणगे। वाइट प्रेसिपिटेट्स ऑफ बेरियम सल्फेट along with that sodium chloride is formed। तो इस क्रिया च भी तुसीं नोट कर सकते हो प्रेसिपिटेट्स बने। सिमिलरली फॉर एग्जांपल ला सकते हो सिल्वर नाइट्रेट का घोल, जदों इस दी सोडियम क्लोराइड के घोल दे नाल क्रिया करवाई जाती है, सिल्वर नाइट्रेट के घोल दी सोडियम नाइट्रेट के घोल दे नाल क्रिया करवाई जाती है, दोनों घोल एक्वस घोल है, मतलब पानी विच घोले हुए हैं, तां तुसीं देख सकते हो सिल्वर क्लोराइड दे वाइट कलर दे की बन जाएंगे, ਇਹਦੇ ਵੀ प्रेसिपिटेट्स ਜਿਹੜੇ है चिट्टे रंग ਦੇ ਹੁੰਦੇ सिल्वर क्लोराइड ਦੇ भी, और की बन जाएगा ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ बन जाएगा सोडियम नाइट्रेट। सो ਤੁਸੀਂ देख सकते हो ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਆਇਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਚ ਅਦਲਾ ਬਦਲੀ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਦੋ ਐਕਵਸ ਘੋਲ ਰਿਐਕਟ ਕੀਤੇ, ਦੋ ਨਵੇਂ ਪਦਾਰਥ ਬਣ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, so it is a type of chemical reaction in which solution in ionic form react, आयंस वाले सॉल्यूशंस रिएक्ट करते हैं और की बनाते हैं, दो नए प्रोडक्ट बनाते हैं। बाय द कैसे बनाते हैं दो प्रोडक्ट, बाय द एक्सचेंज ऑफ आयंस, बाय द एक्सचेंज ऑफ आयंस सिंपली प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड बिकॉज इन दिस रिएक्शन प्रेसिपिटेट्स आर फॉर्म्ड। इस करके रिएक्शन ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। जब पंजाबी च गल करिए तो अवखेप बनते हैं, तो इस ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, अवखेपन क्रिया। आओ असी इस क्रिया की एक होर क्रिया की अगे होर किस्म करिए, डिस्प्लेसमेंट कर ली, दोहरा विस्थापन भी कर लिया जिसमें डबल डिस्प्लेसमेंट आखते हैं। इस तो इलावा एक होर किस्म होंदी है जी, वो है ऑक्सीकरण अते लघुकरण। ऑक्सीकरण that is called as oxidation, ऑक्सीकरण is called as oxidation। what is this oxidation is, की ਹੁੰਦਾ है ऑक्सीकरण। अगर मैं पंजाबी च गल करदा तो ऑक्सीजन की प्राप्ति, अगर किसी भी क्रिया दे विच ऑक्सीजन की प्राप्ति होंदी है जां हाइड्रोजन की हानि होंदी है, हाइड्रोजन की हानि,
मतलब उसका नुकसान होता है हाइड्रोजन का। ऑक्सीजन की प्राप्ति हाँ जी बेटे ऑक्सीजन की प्राप्ति जब हाइड्रोजन की हानि। ऑक्सीडेशन मीन्स दैट इज गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन। गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ hydrogen. So any of the reaction in which oxygen is gained or hydrogen is lost, that is called as the oxidation. For example, when magnesium react with the oxygen, it forms magnesium oxide. You may say in the magnesium oxygen is added. So this is oxidation of magnesium. Similarly, when carbon react with the oxygen, it forms carbon dioxide. It means carbon is getting oxidized. ठीक है, देख सकते हो विद्यार्थियों, मैग्नीशियम ਦੀ मैग्नीशियम ऑक्साइड ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆਕਸੀਕਰਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਾਰਬਨ ਦਾ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆਕਸੀਕਰਨ ਹੋ ਗਿਆ। तो दोनों ही क्रियावां ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। दोनों ही क्रियावां ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। सो गेन ऑफ ऑक्सीजन होया दोनों में, दैट्स व्हाई इट इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और दूसरा की है इस दी ही, क्योंकि ये दोनों इकट्ठे ही रिएक्शन है, ये है लघुकरण रिएक्शन। लघुकरण क्रिया और कॉल्ड एज रिडक्शन। लघु मीन्स छोटा, रिड्यूस मतलब कम होना है ना, तो रिडक्शन इट इज जस्ट रिवर्स ऑफ द ऑक्सीडेशन। जस्ट रिवर्स ऑफ ऑक्सीडेशन की लिखा उसके विच गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन। ना रिवर्स किया तो इसका मतलब इट इज गेन ऑफ हाइड्रोजन, गेन ऑफ हाइड्रोजन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। So any of the chemical reaction in which hydrogen is gained or oxygen is lost, that is called as the reduction reaction. It means पंजाबी ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ तो किस ਦੀ प्राप्ति, हाइड्रोजन ਦੀ प्राप्ति। कोई भी क्रिया जिस ਦੇ ਵਿੱਚ हाइड्रोजन ਦੀ प्राप्ति ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ऑक्सीजन ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ऑक्सीजन ਦੀ ਹਾਨੀ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ, ਉਸ क्रिया ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਲਘੂਕਰਨ क्रिया ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ठीक है, लघुकरण क्रिया ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। लघुकरण क्रिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦਾਹਰਣ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਪਰ ਦਾ ਆਕਸਾਈਡ ਹੈ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ क्रिया ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਲॉस्ट होगी। ठीक है, ऑक्सीजन ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, रिडक्शन, लघुकरण। तो कॉपर बन गया। ਜਾਂ दूसरे शब्दों में कह दो, इसने की कर लिया, हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन ले ली और की बन गया वाटर। ठीक है, सो जिस भी क्रिया दे विच हाइड्रोजन की प्राप्ति होएगी ਜਾਂ ऑक्सीजन की हानि होएगी, उस क्रिया ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, दैट इज लघुकरण। रिडक्शन मींस गेन ऑफ हाइड्रोजन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। तो एक्चुअली ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, दोनों क्रियावां ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ऑक्सीडेशन कदे कली नहीं होंगी और रिडक्शन भी कदे कली नहीं होंगी। मींस ऑक्सीकरण और लघुकरण दोनों क्रियावां नाल दी नाल चलदियां रहंदियां। उदाहरण के लिए ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ देखते हैं, कॉपर ऑक्साइड तो कॉपर बन गया, की होया, ऑक्सीजन का नुकसान होया। हुण ऑक्सीजन की हानि हुई तो इसका मतलब इस ते की हुई, रिडक्शन। लघुकरण इत्थे की होया, हाइड्रोजन तो वाटर, हाइड्रोजन तो पानी बन गया, इसका मतलब ऑक्सीजन की प्राप्ति हुई। ऑक्सीजन की प्राप्ति कितनी है, ऑक्सीडेशन। सो इस रिएक्शन दे विच की होया, दोनों क्रियावां हुई, ऑक्सीडेशन भी रिडक्शन भी। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन बोथ टेक प्लेस, दैट रिएक्शंस आर कॉल्ड एज रेडॉक्स रिएक्शन। ऐड कर दिया रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन, रेडॉक्स रिएक्शन। पंजाबी च दैट इज लघुकरण ऑक्सीकरण क्रिया। ऐसी क्रिया जिस दे विच लघुकरण भी होएगा और ऑक्सीकरण भी होएगा, उस क्रिया को कह देंगे लघुकरण ऑक्सीकरण क्रिया।
that reaction in which both reduction as well as oxidation take place, that is called as the redox reaction. ये जो लघुकरण क्रिया है, रिडक्शन क्रिया है, एक इसके ਵਿੱਚ यूज ਹੁੰਦੀ है, ਇਸ ਦਾ ਵਪਾਰਿਕ यूज ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, तेल ऑयल्स, ऑयल जो है वो द्रव रूप से होता है, लिक्विड रूप से, लिक्विड फॉर्म होती है, उसमें से जब क्या पास करते हैं, हाइड्रोजन गैस पास करते हैं, तो दैट बिकम्स सॉलिड, दैट बिकम सॉलिड। क्या ऐड किया, हाइड्रोजन, क्या हुआ इसका मतलब, रिडक्शन, हाइड्रोजन ऐड हुई है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन मींस एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, पंजाबी च कहने हैं हाइड्रोजनीकरण, ठीक है। तेलों का हाइड्रोजनीकरण कर दिए तो उस तो सॉलिड फैट बनता है, जिहड़ा की हुंदा की घ्यो, तेल तो की बन जाता घ्यो, किहड़े प्रोसेस दे नाल, हाइड्रोजन ऐड करन नाल, हाइड्रोजनीकरण करन नाल। It means that when oils is added with the hydrogen, they get converted to the solid fat, that is called as a ghee, and this process is called as a hydrogenation. So this is the use of redox reaction. Liquid oils, they are converted to the solid fat by the process of hydrogenation, by the process of hydrogenation, okay. So when reduction as well as oxidation take place simultaneously, it is called as the redox reaction, it is called as redox reaction, ठीक है बेटे, उसनो redox reaction।